دوستو کیسے ہو؟ امید ہے سب ٹھیک ہوں گے۔ رات والی ایپیسوڈ اپلوڈ نہیں کر سکا، اس کے لیے معذرت۔ افطاری کے بعد طبیعت ساتھ نہیں دے رہی تھی، سر درد کی وجہ سے ایپیسوڈ نہیں بنا سکا۔ امید ہے یہ ایپیسوڈ آپ کو پسند آئے گی۔ تو چلتے ہیں پہلی چنگاری ناول کی 268 ایپیسوڈ کی طرف۔ صوفی لوگوں کو کوٹھی خرید کر دینے والی بات سن کر بھابھی سے رہا نہیں گیا۔ وہ جھٹ سے بولی، ان کا گھر اتنے پیسوں میں سیل ہو جائے گا کہ وہ اتنی بڑی کوٹھی خرید سکیں؟ میں نے کہا جی بالکل آرام سے ہو جائے گا، کیونکہ ان کا گھر اندرون شہر میں ہے اور وہاں کی پراپرٹی کی ویلیو یہاں سے 3 گنا زیادہ ہے۔ بھابھی بھنویں چڑھا کر منہ بسور کر رہ گئی۔ بھابھی کی حرکات سے صاف پتہ چل رہا تھا کہ صوفی لوگوں کے متعلق اس نے بلا وجہ ہی اپنے دل میں بے تحاشا بغض اور حسد پیدا کر لیا ہے۔ اگر بھابھی بدستور اسی ڈگر پر چلتی رہی تو بہت جلد مجھے بھابھی کو گاؤں پہنچانے کا بندوبست کرنا پڑتا تھا، کیونکہ اس کو عزت راس نہیں آ رہی تھی کہ وہ اتنی شاندار کوٹھی میں رہ سکے۔ میری بات سن کر سوائے بھابھی کے ابو اور بھائی قیصر خوشی کا اظہار کرتے ہوئے بولے، چلو یہ تو بہت اچھا فیصلہ کر لیا۔ میں نے کہا میں یہ پرچی گارڈ کو دے آؤں، کچھ سامان منگوانا ہے۔ بھابھی جلدی سے بولی، کون سا سامان؟ میں نے کہا ان لوگوں کے کچن کا سامان منگوانا ہے، آنٹی نے پیسے دیے تھے کہ سامان منگوا دو۔ یہ کہہ کر میں بھابھی کی بات سنے بغیر ہی اپنے کمرے کی جانب چل دیا۔ کمرے میں جا کر الماری سے کچھ پیسے نکال کر دوسرے کمرے سے نکل کر بیرونی دروازے کی طرف چل دیا۔ باہر آ کر میں نے کاکے کو آواز دیتے ہوئے اپنے پاس بلایا۔ کاکے کو میں نے پرچی کھڑا کر پیسے دیتے ہوئے کہا، کسی گارڈ کو بازار بھیج کر یہ سارا سامان منگوا لو۔ کاکا بولا، جی صاحب جی میں ابھی منگوا دیتا ہوں۔ کاکا واپس جاتے جاتے رک کر بولا، صاحب جی کل سے ایک موٹر سائیکل سوار 3-4 دفعہ گلی سے گزرا ہے۔ میں چونک کر بولا، کیا تمہیں اس کی کوئی حرکات مشکوک لگی ہے؟ کاکا بولا، حرکات صرف یہی مشکوک لگی ہیں کہ وہ جب بھی گزرا ہے کوٹھی کے آگے آ کر موٹر سائیکل آہستہ کر کے کوٹھی کو غور سے دیکھتے ہوئے جائزہ لے رہا تھا۔ کاکے کی بات سن کر مجھے تشویش ہونے لگی کہ کہیں پھر سے کوئی میری ریکنگ نہ کر رہا ہو۔ میں چند لمحے سوچنے کے بعد بولا، کیا یہ عمل وہ ہر بار گزرتے کرتا تھا، بس ایک ہی دفعہ کیا تھا؟ کاکا بولا، صاحب جی وہ 3-4 دفعہ گزرا ہے، ہر بار وہ اسی انداز میں کوٹھی کا جائزہ لیتے ہوئے دیکھا گیا ہے۔ میں ہم کہہ کر بولا، اس کا حلیہ کس طرح کا تھا؟ کاکا بولا، میں اس کا چہرہ تو نہیں دیکھ سکا کیونکہ اس نے ہیلمٹ پہن رکھا تھا، مگر جسمانی لحاظ سے نارمل ہی تھا۔ میں ہم کہہ کر بولا، اوکے، اب اگر دوبارہ وہ شخص گزرے تو اسے روک کر مجھے بلا لینا۔ کاکا بولا، اگر اس نے بھاگنے کی کوشش کی تو؟ میں نے 2 ٹوک کہا، تو پھر اس کی ٹانگ میں مار دینا، پھر بھی نکلنے کی کوشش کرے تو ٹھوک دینا، پھر جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ میری بات سن کر کاکا جی صاحب جی کہہ کر پرچی پکڑے گیٹ کی جانب چلا گیا۔ کاکے کے جانے کے بعد میں پہلے تو واپس آنے لگا، مگر کچھ سوچ کر کاکے کے پیچھے گیٹ کی جانب چل پڑا۔ اس وقت کوٹھی میں 7 گن مین موجود تھے جن کے پاس جدید ہتھیار تھے۔ میں نے سب کو ایک جگہ اکٹھا کرنے کے بعد ان کو پوری طرح چوکس رہنے کے ساتھ ساتھ مزید کچھ ہدایات دیں۔ شادے نے تو ان کو یہاں تک آرڈر دے رکھا تھا کہ اگر کوئی بھی ایمرجنسی ہو تو چلانے میں ایک لمحے کی بھی دیر نہیں کرنی ہے۔ کچھ دیر ان سے بات چیت کرنے کے بعد میں واپس ڈرائنگ روم میں ابو اور بھائی قیصر کے ساتھ بیٹھ کر گپ شپ کرنے لگ گیا۔ اس دوران بھائی قیصر نے بھابھی کو چائے لانے کا کہا۔ بھابھی اٹھ کر چائے بنانے چلی گئی۔ بھابھی کے جانے کے بعد ابو بولے، یاسر بیٹا، جہاں تم نے اپنی آنٹی لوگوں کو رہنے کے لیے کہا ہے وہاں گن مین رکھنے کی ضرورت تو نہیں؟ میں نے کہا، نہیں ابو جی، پہلی بات تو کسی کو اس بارے میں معلوم ہی نہیں ہے کہ وہ لوگ دوسرے پورشن میں شفٹ ہو گئے ہیں۔ دوسرا، وہاں بیرونی دیوار پر الیکٹرک سیکیورٹی نصب ہے اور نہ خانہ کا خفیہ راستہ بھی ہے۔ ابو بولے، یعنی وہاں کسی قسم کا خطرہ نہیں ہے؟ میں نے کہا، جی ابو ہم کہہ کر خاموش ہو گئے۔ 1 گھنٹے بعد گارڈ سامان لے کر واپس آ گیا۔ میں نے کچھ سامان زرینہ کو پکڑایا اور کچھ سامان خود اٹھا کر آنٹی لوگوں کو دے آیا۔ واپسی پر زرینہ میرے ساتھ ہی تھی۔ اوپر راہداری میں پہنچ کر زرینہ بولی، صاحب جی ایک بات کہوں؟ میں چونک کر اس کی طرف دیکھتے ہوئے زرینہ کا شوخ پن دیکھ کر اسے گھورتے ہوئے بولا، میں نے کیا شرارت کر دی؟ زرینہ بولی، اب تو کہہ رہے تھے کہ میں بیرون ملک جا رہا ہوں، مگر اب تو صوفی لوگوں کا سامان چھوڑنے گئے تھے۔
जरीना की बात सुनकर मैं संजीदा अंदाज में बोला, तुम जो कह रही थी कि बैरून मुल्क जाने वाले लोग वहां जाकर कुत्ते नहलाते हैं, इसी वजह से मैंने अपना इरादा कैंसिल कर दिया। जरीना समझने की बजाय कि मैं इसका तमस्खुर उड़ा रहा हूं, उल्टा मेरी बात को सच मानकर खुश होते हुए बोली, सच्ची साहिब जी। मैं इसकी नकल उतारते हुए बोला, हाँ जी मची। जरीना बोली, साहिब जी अब 2 दिन से आए हुए हो। मैं चौंक कर उसकी जानिब देख कर बोला, तो फिर? जरीना बोली, वो अपने मुझे एक बार भी नहीं कहा कि नहा धोकर तैयार रहना। जरीना की बात सुनकर मैं अपनी हंसी को होंठों तले दबाते हुए बोला, ओए तुम पागल तो नहीं हो गई? घर में इतना रश लगा हुआ है और मैं तुझे तैयार होने का कहता, अपने साथ साथ मुझे भी मरवाओगी? जरीना बोली, सारी साहिब जी। जरीना के मुंह से सॉरी की बजाय सारी साहिब जी सुनकर मैं हंसते हुए बोला, अच्छा ठीक है ठीक है, जब तुम्हें तैयार होना हो तब बता दूंगा। और बात सुनो। जरीना बोली, जी साहिब जी। मैंने कहा, भाभी से जरा बचकर रहना। जिस दिन इसे जरा सा भी तुम पर शक पड़ गया ना, इसी दिन वो तुम्हें गांव भिजवा देगी। जरीना कानों के बारी बारी हाथ लगाते हुए बोली, तौबा तौबा साहिब जी, मेरी मतमारी है कि मैं बुरी बेगम के सामने कुछ करूं। मैंने कहा, सिर्फ किश ही नहीं करना, बल्कि इससे जितना दूर रहोगी तुम्हारे लिए इतना ही फायदा है। जरीना इस बात में सर हिलाते हुए बोली, जी बेहतर साहिब जी। ये कहकर जरीना बोली, साहिब जी एक बात कहूं, अगर बुरा ना मानो। इस दौरान हम दूसरे पोर्शन में दाखिल हो चुके थे। मैं रुकते हुए बोला, जी जल्दी बोलो। जरीना बोली, साहिब जी बड़ी बेगम साहिबा की निस्बत छोटी बेगम साहिबा खूबसूरत भी ज्यादा है और आदत की भी बहुत अच्छी है। मैं जरीना की बात की तायीद करने की बजाय इसे घूरते हुए बोला, चुप कर, ऐसे नहीं कहते। वो घर की बड़ी है, इज्जत की जगह है। चलो नीचे। ये कहकर मैं सीढ़ियों की जानिब बढ़ा। जब जरीना मुंह लटकाए मेरे पीछे आने लगी। भाभी से मुलाकात करने की वजह से रात को बिस्तर पर लेटते ही मैं जल्दी सो गया। भाभी की आग वैसे ही ठंडी हो चुकी थी, इसलिए रात को भाभी ने भी मुझे तंग नहीं किया। अगले दिन सुबह उठकर मैं नहाकर फ्रेश होकर इंडिया से खरीदा हुआ काले रंग का कर्ता पाजामा और नीचे काले रंग की पिंपी टाइप का शूज पहनकर काला चश्मा लगाए कमरे से बाहर निकला तो ड्राइंग रूम खाली देखकर मैं दूसरी लोगों की जानिब चला गया। वहां पहुंचा तो सबसे पहले आंटी मुझे देखकर मुझ पर सदके वारी जाते हुए नजरबद से बचने की दुआएं देने लगी। इसके बाद नाश्ता करने के लिए जब मैं सूफी के कमरे में जाकर बैठा तो सूफी ने दरवाजा बंद करके पहले तो मेरे पूरे चेहरे को चूमा, फिर मेरे कान के नीचे गर्दन पर काला टेका लगाते हुए बोली, कहीं तुम्हें मेरी नजर ना लग जाए। मैंने कहा, तुम्हारी नजर तो कब की लग चुकी है। सूफी मुस्कुराते हुए मेरी बात को टालकर बोली, तुम बैठो, मैं नाश्ता लेकर आती हूँ। कुछ देर में नाश्ता करके मैं जरूरी काम से जाने का कहकर वापसी आ गया। वापस आया तो भाभी मुझे सीढ़ियां उतरते देखते ही तंजिया अंदाज में बोली, लगता है रात ससुराल में गुजार कर आए हो। भाभी की बात सुनकर मेरे तन मन में आग लग गई। मैं कुछ कहने ही लगा था कि जरीना किचन से निकलती नजर आई। जरीना को देखकर मैं खुद पर कंट्रोल करके भाभी पर गहरी नजर डालकर अपने कमरे में गया। अलमारी से चेक बिक और हथियार वगैरह उठाकर कमरे से बाहर निकला तो एक बार फिर से भाभी का सामना करने को मिला। भाभी मुझे देखते ही बोली, अब किधर जा रहे हो। मैं भाभी की बात सुनी अनसुनी करके इसकी बात का जवाब देना तो दूर की बात, इसकी तरफ देखना गवारा नहीं किया और तेज तेज कदम उठाता हुआ ड्राइंग रूम से बाहर निकलकर गैराज में आ गया। बाहर आकर मैंने 2 गनमैन साथ लिए और डाले में सवार होकर शहर की तरफ रवाना हो गया। कॉलोनी के मैन गेट के पास पहुंचकर अचानक कुछ याद आने पर मैंने गाड़ी रोककर गेट पर खड़े गनमैनों को अपने पास बुलाकर इससे पूछा, 2 दिनों से हेलमेट पहने हुए मोटरसाइकिल सवार कॉलोनी में आ रहा है, क्या तुम इसे जानते हो? गनमैन जहन पर जोर डालते हुए बोले, साहिब जी कॉलोनी में काफी घरों के अफराद मोटरसाइकिलों पर आते जाते हैं। इनमें से कई ने हेलमेट पहना होता है। ऐसे कैसे पता चल सकता है कि कौन मशकूक है? मैंने कहा, आज से तुमने इस बात पर खास तवज्जो देनी है कि ऐसी पोजीशन में कौन सा फर्द गैर मुताल्लिका है। गार्ड बोला, जी साहिब जी, मैं अब पूरी कोशिश करूंगा कि अगर कोई मशकूक हुआ तो इसे अंदर दाखिल नहीं होने दूंगा। मैं हम कहकर गाड़ी आगे बढ़ाकर शहर की जानिब चल पड़ा।
इस दौरान मैं बैक मिरर और विंडो स्क्रीन पर चौकस अंदाज में हर आने जाने वाले को नोट कर रहा था कि कोई तसलसल से मेरे पीछे तो नहीं, मगर अभी तक मुझे ऐसा कोई मशकूक शख्स नजर नहीं आया। बैंक पहुंचकर मैंने अकाउंट से कुछ पैसे निकलवाए और गांव की जानिब चल पड़ा। गांव पहुंचकर मैं सीधा चौधरी साहिब की हवेली पर गया। वहां जाकर मालूम पड़ा चौधरी साहिब हवेली पर मौजूद नहीं है। मैंने हवेली के खास मुलाजिम को चौधरी साहिब तक अपनी हाजिरी देने का पैगाम पहुंचाकर मैं आंटी फौजिया के घर पहुंचा। आंटी फौजिया, उज़्मा और नसरीन मुझे हसरत भरी नजरों से देखने लग गईं। आंटी तो मुझ पर सदके वारी जाने लगी। मैं वहां कुछ ही देर बैठा। निकलने से पहले मैंने नसरीन से पूछा, क्या तुम इस शख्स को पहचान लोगी जिसने तुम्हारी इज्जत पर हाथ डाला है? नसरीन अफसरदा अंदाज में इस बात में सर हिलाते हुए बोली, जी। मैं हम कहकर नसरीन को अपने साथ चलने का कहा। आंटी समझ गई थी कि मैं किस वजह से साथ लेकर जा रहा हूं, इसलिए आंटी मेरी मिन्नतें करने लग गई कि इस मामले को दफ करो, मगर मेरे सख्त रद्द अमल के आगे आंटी खामोश तो हो गई। फिर भी आंटी ने मेरे साथ जाने की जिद की। मैंने कहा, ठीक है, उज़्मा को भी साथ ले ले। फिर अचानक कुछ सोच कर मैंने कहा, अब लोग कुछ देर रुके, मैं एक दफा डेरे से होकर आता हूं। वापसी पर आप लोगों को साथ लेता जाऊंगा, और प्लीज आप में से कोई भी इधर उधर मत हो। वापसी पर मेरे पास इतना टाइम नहीं होना कि मैं इंतजार कर सकूं। ये कहकर मैंने आंटी को 10,000 दिए और वहां से निकलकर डेरे की जानिब रवाना हो गया। डेरे पर पहुंचा तो माजू और मजीद साथी वहां मौजूद थे, जबकि शादी चौधरी साहिब के साथ गया हुआ था। माजू और जमशेद से बड़ी गर्मजोशी से मुलाकात करने के बाद हम इंडिया में गुजरे हुए वाकयात को याद करके कहकहे लगाकर उन लम्हात को एंजॉय करते रहे। माजू दिल्ली के 5 स्टार होटल में की गई अय्याशी को बार बार दोहराते हुए मजे ले लेकर बता रहा था कि मैंने ये किया, वो किया, ऐसे किया। कुछ देर बाद में असल मौजू छेड़ते हुए माजू से मुखातिब हुआ, माजू यार, नहर के साथ जो 10 एकड़ जमीन है वो किसकी है? माजू मस्ती करते हुए बोला कि तुमने खरीदनी है। मैंने कहा, दर फुटी मुन, मैं ऐसे ही पूछ रहा हूं। माजू बोला, जो नहर के बिल्कुल साथ है वो साथ वाले गांव का फुलको नामी बंदा है, इसकी है। और जो तुम्हारी गिल्ली के आखिर से शुरू होती है वो सारी जमीन चौधरी साहिब की है। फलक का नाम सुनकर मैं सोचने लग गया कि आंटी फौजिया ने तो शायद कोई और नाम बताया था। अगले ही लम्हे फलक शेर से नकनीम फुलको को समझने में मुझे ज्यादा देर नहीं लगी। फिर भी मैंने तसल्ली के लिए माजू से पूछा, इसका असल नाम फलक शेर तो नहीं? माजू बोला, मेरे ख्याल से यही नाम है। क्यों? खैर तो है, इसके बारे में इतनी तफ्तीश क्यों कर रहे हो? मैंने कहा, बताता हूं, पहले ये बताओ कि इसके बारे में कितना जानते हो। मेरा कहने का मतलब वो किस टाइप का बंदा है। माजू बोला, खैर तो है, कोई मसला बन गया है? मैंने कहा, हाँ, इससे मलना है, इसलिए इसके बारे में जानना चाहता हूं। माजू बोला, अगर मलना है तो फिर इसमें इसे जाने वाली क्या बात है? चलो चल कर मिल लेते हैं। मैंने कहा, चलते हैं, पहले ये तो बताओ कि वो किस टाइप का बंदा है। माजू बोला, अब तो बेचारा बूढ़ा हो गया है, मगर उसका बेटा है जहांगीर नामी, वो जरा हुआ में उड़ता फिरता है। तुम्हें याद है ना चौधरी साहिब के इलेक्शन में जिस मुखालिफ की पुश्त पनाही पर उसकी थोड़ी हुआ टाइट है? मैं बुड़बुड़ाते हुए बोला, फिर तो इससे मुलाकात करने का मजा आएगा। माजू चौंक कर बोला, किससे? मैंने कहा, इसी से जिसकी हुआ टाइट रहती है। माजू बोला, पहले तो तुम कह रहे थे कि फलक शेर से मलना है, अब इसके बेटे से कोई मसला है? मैंने कहा, हाँ यार, इसी की हुआ निकालनी है। माजू बोला, खैर तो है, आते ही धमाके करने का प्लान है। मैंने कहा, यार क्या करें, लोग सुकून से रहने ही नहीं देते। माजू बोला, हुआ क्या है? मैंने कहा, हमारी गिल्ली में मौजूद आंटी फौजिया रहती है, जिसकी एक बेटी मेरे पास दुकान पर काम भी करती है। माजू बोला, हाँ, जिसका अखरी के साथ मसला बना था। मैंने कहा, हाँ बिल्कुल, इसकी छोटी बहन है नसरीन। फलक शेर के बेटे जहांगीर ने इसकी इज्जत पर हाथ डालने की कोशिश की है। तुम जानते हो, एक तो मेरा उनके साथ फैमिली ताल्लुक है, दूसरा वो हमारे गांव की इज्जत है। माजू एकदम गुस्से में आते हुए बोला, कब, किस वक्त हुआ ये सब? मैंने कहा, जब हम इंडिया में थी, इसके बाद ये वाकया पेश आया है। ये कहकर मैंने माजू को तफसील से सारी बात बता दी। मेरी बात सुनकर माजू गुस्से से लाल पीला होते हुए बोला, इसकी इतनी हिम्मत कि हमारे गांव की इज्जत पर हाथ डाले, इसकी बाजू ना काट दूं। मैंने कहा,
अभी अगर तुम फ्री हो तो चलो मेरे साथ एक दफा इससे मिलकर तो आए। माजू जल्दी से उठकर खड़ा होते हुए बोला, नेकी और पूछ पूछ चल निकलने वाली गिल कर। मैं पहले ही यहाँ बैठे बूढ़ हो रहा था। मैं उठते हुए बोला, चलो फिर निकलो। ये कहकर हम बाहर इहाते में आ गए। बाहर आकर माजू बोला, सामान शमुन ले लिया है या फिर यहाँ से मजीद ले लें? मैं कमरे के दोनों अतराफ हाथ मारते हुए बोला, हथियार तो अब जेवर बन गए हैं, उनके बगैर तो वैसे ही बंदा बंदा नहीं लगता। माजू कहका लगाकर हंसते हुए बोला, ये की ना मर्दों वाली बात, चल गाड़ी निकाल। मैं ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। माजू मेरे साथ वाली सीट पर बैठ गया, जबकि डेरे से मजीद 3 साथी और गाड़ी में बैठकर हम गांव की तरफ रवाना हो गए। निकलते वक्त मैंने माजू को कहा, यार आंटी लोगों को भी साथ लेकर जाना है ताकि उनके सामने इसको सबक सिखाएं, ताकि आंटी लोगों को भी मालूम पड़ जाए कि इस हरामी का अंजाम किया हुआ है। माजू बोला, वैसे तो उनको साथ ले जाने की जरूरत नहीं, इतना तो वो लोग तुम्हें जानते ही हैं कि तुम जो कहते हो वो करके दिखाते हो। अलबत्ता दूसरी सूरत में उनको साथ ले जाना भी बनता है ताकि वो अपने करतूत से मकर ना सके। जब वो इन लोगों को देखेगा तो इसे खुद ही अंदाजा हो जाएगा कि हम किस लिए आए हैं। माजू की बात सुनकर मैं इसकी बात की तायीद करते हुए बोला, बिल्कुल ये भी बात सही है। मैंने कहा, मगर एक बात का ख्याल रखना, अगर कोई मामला गड़बड़ हुआ तो आंटी लोगों को गाड़ी में ही बैठे रहने देना। मैं चौंकते हुए बोला, क्या मतलब? किस तरह का मामला खराब होने का अंदेशा है? माजू बोला, मेरा मतलब है कि गोली शोली चल गई तो ये ना हो कि आंटी लोगों में से किसी को लग जाए, इसलिए मैं तो कहता हूं कि इन लोगों को साथ ले जाने को रहने दो। मैंने कहा, नहीं यार, उनको साथ ले जाना है, क्योंकि मैंने उनसे वादा किया है कि इसका अंजाम अब सबकी आंखों के सामने होगा। माजू बोला, ठीक है फिर जैसे तेरी मर्जी, मगर उनको तब तक गाड़ी से नहीं निकलने देना जब तक हालात हमारे कंट्रोल में ना हो जाएं, क्योंकि हम अगले बंदे के घर जाकर उसको फेंटी लगाने वाले हैं। मैंने कहा, ठीक है, जैसे तुम कहोगे वैसे ही होगा। इसी दौरान मैंने गिल्ली में गाड़ी मोड़कर आंटी फौजिया के घर के बाहर गाड़ी रोककर हान दिया। कुछ ही देर में आंटी अपनी दोनों बेटियों के हमरा घर से बाहर निकलकर गाड़ी में सवार हो गईं। उनके बैठते ही मैंने गाड़ी आगे बढ़ाकर साथ वाले गांव की जानिब रवाना हो गया। माजू अभी भी मेरे साथ वाली सीट पर ही बैठा था, जबकि आंटी लोग पिछली सीट पर बैठी हुई थी। रास्ते में भी आंटी फौजिया ने 2-3 दफा कहा कि इस मामले को दफ करो, मगर माजू ने ही आंटी को जवाब देते हुए कहा कि अगर आज हमने इस हराम के जने को सबक नहीं सिखाया, कल को वो किसी और लड़की की इज्जत पर भी हाथ डाल सकता है, और वो हम यही समझेंगे कि इस गांव में कोई मर्द नहीं है जो इससे नथ डाल सके। बातों के दौरान हम गांव में दाखिल हुए तो मैंने आंटी को समझा दिया कि जब तक मैं न कहूं आप लोगों ने गाड़ी से बाहर नहीं निकलना। एक तो गाड़ी के शीशे ब्लैक थे, दूसरा तीनों माँ बेटियों ने निकाब करके चेहरों को ढांप रखा था। गांव में दाखिल होकर एक राहगीर से फलकशेर के घर का पता मालूम करने के बाद में इस घर की तरफ रवाना हो गए। कुछ देर बाद हमने फलकशेर के घर के बाहर गाड़ी रोकी। गांव के माहौल के मुताबिक बड़ा सा खुला डले मगर नॉर्मल हालत का घर था, जैसे अमूमन छोटे जमींदारों के होते हैं। माजू बोला, यासिर पहले किसी गिनमैन को भेजकर पता करवाते हैं कि जहांगीर घर पर ही है। मैंने कहा, नहीं मैं खुद जाकर पता करता हूं। मुझे बोला, ओके, अगर कोई औरत निकले तो इसे यही जाहिर करवाना कि तुम उसके दोस्त हो। इस गांव के अक्सर लोग मेरी शक्ल से वाकिफ हैं। अगर मैं गाड़ी से बाहर निकला तो गिल्ली में से कोई शख्स भी मुझे पहचान कर जहांगीर को या इसके घर वालों को चूक न कर सकता है। माजू की बात सुनकर मैंने गाड़ी में बैठे गिल्ली का जायजा लिया तो गिल्ली के कुछ लोग बड़े गौर से गाड़ी को देख रहे थे, क्योंकि उनको गाड़ी के अंदर तो कुछ नजर नहीं आ सकता था। अलबत्ता पीछे बैठे गिनमैनों को देखकर उनको तशवीश जरूर हो रही थी कि ये कोई बड़ी शख्सियत है। मैं गाड़ी से उतरकर गिल्ली में खड़े लोगों पर मुख्तसर नजर डालते हुए गेट की जानिब बढ़ा। गेट नॉक करने के कुछ देर बाद घर से एक 10-12 साल का बच्चा निकला। बच्चे ने पहले तो मुझसे सर से पांव तक गौर से देखा, इसके बाद पीछे खड़ी गाड़ी और इसमें बैठे गिनमैनों को देखा। इससे पहले के सिचुएशन को देखकर लड़का घबरा जाता, मैंने ऐनक उतारकर इंतहाई खुश मिजाजी से मुजाहरा करते हुए कहा, क्या हाल है बेटा? लड़का झिझकते बोला, जी जी ठीक हूं। मैंने कहा, क्या बेटा जहांगीर घर पर है? मैं इसका दोस्त हूं। लड़का बोला, नहीं जहांगीर चाचू घर पर नहीं है। मैंने कहा, कुछ मालूम है कि वो कहाँ है? लड़का बोला, जगो चाचू तो सुबह से डेरे पर गया है। मैंने मुस्कुराते हुए बच्चे की गाल थपथपा कर कहा, जहांगीर को तुम जगो चचा कहते हो? लड़का बोला,
जी सब उनको इसी नाम से पुकारते हैं। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, क्या तुम बता सकते हो कि वो घर पर कब आएगा? लड़का बोला, इसका कोई पता नहीं होता कब घर आता है। मैंने कहा, अच्छा बेटा, ये तो तुम्हें पता होगा कि आप लोगों का डेरा कहाँ है। लड़का इस बात मैं सर हिलाते हुए बोला, जी चाचू पता है। मैंने कहा, तो बताओ बेटा, हमें किस तरफ जाना होगा? यहाँ से कितनी दूर है? इससे पहले कि लड़का कुछ कहता, पीछे घर से औरत की आवाज आई, मेरे कानों में पड़ी। जेबी पत्थर कौन है? लड़का घर के अंदर देखते हुए बोला, अम्मा, बाहर कोई जगो चाचू से मिलने आया है। अंदर से आवाज आई, इसे बताओ कि जगो डेरे पर है, वहां चला जाए। लड़का जी अम्मा कहकर मेरी जानिब मुतवज्जे होकर बोला, आप यहाँ से सीधे जाकर बाएं जानिब मुड़कर बिल्कुल सीधे चले जाएं। आगे गांव के आखिर में कुछ कच्ची सड़क शुरू हो जाएगी। इस सड़क पर आगे जाकर दाएं जानिब पहला डेरा हमारा ही है। मैं बच्चे से रास्ता पूछकर लड़के की गाल थपथपाकर उसका शुक्रिया अदा करके गाड़ी में बैठ गया। बच्चे के साथ शफकत से पेश आने की एक तो ये वजह थी कि वो मासूम बच्चा था, दूसरा मैं नहीं चाहता था कि मेरा सख्त लहजा देखकर घर जाकर वो घर वालों को मेरे बारे में किसी किस्म के खतरे से आगाह कर दे। क्योंकि गांव में जो लड़ाई झगड़े होते हैं, लड़ाइयों में मर्दों की निस्बत उनकी औरतें लड़ाई में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेती हैं। इस चीज को मद्देनजर रखते हुए मैं इस मामले को बाहर ही निपटाना चाहता था, ताकि जहांगीर के घर की कोई औरत बीच में दखल अंदाजी ना कर सके। अगर जहांगीर मुझे घर पर मिल जाता तो इसे हमने फौरी तौर पर गाड़ी में डालकर यहाँ से निकल जाना था और इसे अपने डेरे पर ले जाकर उसकी तबीयत साफ करनी थी। माजू मेरी तरफ देखते हुए बोला, लगता है वो साला घर पर नहीं है। मैंने कहा, वो अपने डेरे पर है। माजू बोला, फिर तो और मजा आएगा। मैं गाड़ी आगे बढ़ाते हुए बोला, वो कैसे? माजू बोला, डेरे पर खिली फिजा होगी, कोई बीच बचाव करवाने नहीं आएगा। ऐसे माहौल में शिकार करने का अलग ही मजा है। माजू की बात सुनकर मैं हंसते हुए बोला, चिड़ यार, वो कौन सा 30 मार खान है जो इसका शिकार करने का मजा लेना है? हाँ, ये कह सकते हो कि वहां इसके घर की औरतें बीच बचाव करने नहीं आएंगी। माजू बोला, मैं भी यही कहना चाह रहा था। हमारी बातें जा रही थीं जबकि आंटी लोग खामोशी से हम दोनों में होने वाली बातों को सुन रही थीं। गांव से बाहर निकलकर आगे छोटी सी कच्ची सड़क शुरू हो गई थी। जो गांव के जमीनों के रास्ते कच्चे होने की वजह से मैं गाड़ी बहुत आहिस्ता चला रहा था, ताकि टायरों से उड़ने वाली धूल पीछे बैठे गिन मैनों पर ना पड़े, वरना जितनी मिट्टी थी पीछे बैठेगा ना। मैंने डेरे पर पहुंचने तक वैसे ही बांदर तो बन जाना था। कुछ देर बाद मुझे दाएं जानिब डेरा नजर आया। जहांगीर के भतीजे के बकौल पहला डेरा उनका ही आता है। माजू के कहने पर मैंने गाड़ी डेरे की बैरूनी दीवार के शुरू में ही रोक दी। माजू बोला, यासिर, एक दफा तुम अकेले जाकर इससे थोड़ी पूछ कुछ करो, यकीनन वो तुमसे बदतमीजी ही करेगा। इस सूरत में फिर हमें एंट्री मारेंगे। मैंने कहा। हम कहकर गाड़ी से उतरा तो माजू भी मेरे साथ ही गाड़ी से बाहर आ गया। चारों तरफ सन्नाटा छाया हुआ था। मैं और माजू गाड़ी से उतरे तो साथ ही पीछे बैठे गिनमैन भी गाड़ी से उतरकर हाथों में पकड़े हथियारों की पोजीशन सीट करने लगे। माजू ने गिनमैनों को इशारे से कहा कि जब तक यासिर की तरफ से इशारा ना मिले तब तक तुम लोग ठंडे ही रहना। ये कहकर माजू मेरी जानिब देखते हुए बोला, यासिर, एक दफा तुम अंदर जाओ, हम तुमसे थोड़ा पीछे रहकर सारा मुकालमा देखने के बाद एंट्री करेंगे। मैंने कहा, हम कहकर इहाते की बैरूनी दीवार के साथ चलता हुआ गेट की जानिब बढ़ने लगा। गेट के पास पहुंचा तो बैरूनी गेट खुला हुआ देखकर मैंने माजू की तरफ देखकर इशारे से पूछा कि गेट खुला है, अंदर जाने का क्या करना है? मतलब इजाजत लेनी है? अब बगैर इजाजत के ही अंदर दाखिल हो जाऊं? माजू ने सर के इशारे से अंदर जाने का कहते हुए मेरी जानिब बढ़ने लगा। मैं इस बात में सर हिलाकर गेट से अंदर दाखिल हुआ। डेरे का इहाता काफी बड़ा था। एक तरफ भैंसें वगैरह बांधी हुई थीं, जबकि दूसरी जानिब ट्रैक्टर और जरी आलात पड़े थे। गेट से दाखिल होते हुए सामने की तरफ 2 बड़े कमरे बने हुए थे, जिनके आगे बरामदा भी था। अभी मैं अंदर दाखिल हुआ ही था कि भैंसों वाली साइड से एक आदमी, इहाते की 4 दीवारी ऊंची होने की वजह से इसको बाहर खड़ी गाड़ी और माजू लोग नजर नहीं आ सके थे, इसीलिए वो मुझे अकेला ही समझ रहा था। वैसे तो मेरी पर्सनैलिटी काफी हद तक डिशेन किस्म की थी, फिर भी वो अपना जाहिलाना अंदाज के हाथों मजबूर होकर मुझसे इस लहजे में बात कर रहा था। मैंने कहा, जहांगीर से मिलना है? वो इसी अंदाज में बोला, खैर है, कोई काम है जगो बादशाह से?
اور تم نے بتایا نہیں کہ تم کون ہو اور کہاں سے آئے ہو۔ میں نے کہا تم سے جو پوچھا ہے اس کا جواب دو، میں جو کوئی بھی ہوں۔ تمہارے جگو بادشاہ کو میرے اس بارے میں سب پتا ہے۔ اتنے میں سامنے کمرے سے 6 فٹ کے قریب کا قدآور نوجوان باہر نکلا۔ شکل و صورت سے ہی وہ بدماش نظر آ رہا تھا۔ مجھ پر نظر پڑنے کے باوجود وہ مجھے ایسے نظر انداز کر کے میرے قریب کھڑے شخص سے مخاطب ہوا جیسے ان کی نظروں میں میری کوئی حیثیت ہی نہ ہو۔ اس کے چہرے پر سخت ناگواری تھی، جیسے اس کو میرا یہاں آنا بالکل بھی پسند نہیں آیا تھا۔ وہ انتہائی کرخت لہجے میں بولا، اوئے نجو، کون ہے یہ اور یہ کیا کہہ رہا ہے؟ جیسا کہ مجھے ماچو پہلے ہی آگاہ کر چکا تھا کہ چودھری صاحب کے مخالفین میں اس نے بیٹھنے کی وجہ سے آج کل جہانگیر خان کی ہوا کافی ٹائٹ ہو چکی ہے۔